morning everyone. Students, good morning. How are you? बेटे कैसे हो? Today already I am presenting over here. It is video and a topic is fraction. इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बेटा मैंने बतलाया फ्रैक्शन का इनिशियल स्टेप के बारे में कि फ्रैक्शंस क्या है, ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है. तो once I would or again like to repeat, fraction that has a two part. फ्रैक्शन का दो पार्ट होता है. वन फ्रैक्शन का दो पार्ट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इसके दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही मिलकर फ्रैक्शन का कंस्ट्रक्शन करता है. देन आफ्टर गो हेडिंग, इससे आगे बढ़ने के पहले ऑल्सो आई वुड लाइक टू डिफाइन हाउ यू कैन डिफाइन द डेफिनेशन फॉर फ्रैक्शन. सो यू मस्ट बी कैरी a fraction is of the form p by q, where q should be not equal to 0 and p comma q are natural numbers. Because according this definition, suppose I write here 4 by 5. Now justify it. Is it a fraction or not? बताइए बेटा, क्या ये फ्रैक्शन है या नहीं? तो should be your answer should be yes, because just this definition is also carry. This has two parts. It has two parts. Upper part 4, that is a numerator. Down part 5, that is denominator. Here q is denominator is 5, not 0. 4 and 5 both are part of natural numbers. Means all these criteria are already contained in this term. So I can this is an example of fraction. But suppose we write 9 by 0. That is this a polynomial? क्या है? Sorry, is this a fraction? क्या फ्रैक्शन है? नो. Your answer should be no, because its denominator is 0. That not follow the criteria of this definition. जो इस definition की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह फ्रैक्शन नहीं है. अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ इसके टाइप्स पे. फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हैविंग लेस वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर. अगर किसी फ्रैक्शन का यू राइट 4 by 5. 4 is a part of numerator and this 5 is a part of denominator. What we observing here, आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हो कि इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर पार्ट जो है वो लेस है डिनोमिनेटर पार्ट से. अगर ऐसा है तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन.
मीन सिंपली आई कैन से वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से, a fraction having less value of the numerator than denominator, that is called proper fraction. Second one, suppose you write 9/4. This is part of numerator. This is a part of the denominator. Now you observing here, and you can find its numerator is greater than denominator, and that is a part of improper fraction. That is a part of improper fraction. So what should be definition? A fraction having greater numerator than denominator. अगर कोई फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर से बड़ा है, certainly that is an improper fraction. Next one, mixed fraction. जब improper fraction होगा तो improper fraction को हम एक्सटेंड करते हैं mixed fraction के रूप में. Just like again 9/4. This 9/4 can be written as 2 whole 1/4. तो अगर इस प्रकार का फ्रैक्शन आप देखेंगे जिसका अगर कंक्लूजन किया जाए, शॉर्ट आउट किया जाए, तो मिक्स फ्रैक्शन जनरली शॉर्ट आउट होकर के इम्प्रोपर फ्रैक्शन देता है. इन सेकेंड लैंग्वेज आई कैन से इम्प्रोपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन देता है. तो दिस 2, व्हाट इज इट नाउ? 2 a whole number plus it has 2 parts, 2 and 1/4. So this is whole number and this is proper fraction. Proper fraction. So I can define a fraction combining a whole number. A fraction combines a whole number along with a proper fraction, that is called improper fraction. Now next point, lowest form of a fraction. Suppose you write here 8/10. Is 8/10 a fraction or not? पहले आप बताओगे कि क्या 8/10 बेटा फ्रैक्शन है? तो योर आंसर शुड बी यस, हाँ है, बिकॉज इट हैज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बोथ आर नेचुरल, न्यूमरेटर इज नॉट 0, मींस ये फ्रैक्शन है. तो क्या इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं बेटा इस प्रकार से? 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. इसे रिड्यूस करके आप क्या बना सकते हैं? 4/5 बना सकते हैं. तो अगर कोई फ्रैक्शन और टूट सकता है, उसे और अगर सॉर्ट आउट कर समझने में आप कैपेबल हैं, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम कहते हैं कि आपने फ्रैक्शन को क्या किया? लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. और ये आपने लोवेस्ट का पार्ट में कन्वर्ट किया, एक कहलाता है लोवेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन. सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. कभी कभी एक आपको फ्रैक्शन का समूह मिलेगा. यू आर गेटिंग द कलेक्शन ऑफ फ्रैक्शन जस्ट लाइक 4/7, 9/7, 1/7. In this way you are getting some collection of fractions, but after observing you will find those all fractions have the same denominator. इस सारे डिनोमिनेटर जो है सबों का वो सेम है. तो इस प्रकार का कंडीशन हो तो दैट इज ऑल आर नोन एज
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट वन, लाइक इन अनलाइक फ्रैक्शन। आपको एक बकेट दे दिया गया, एक कलेक्शन दिया गया है, इसमें इस प्रकार से आपने लिखा है 4/7, 9/2, 18/4, 12/21, इस प्रकार के एक समूह है। तो इसे हम दो कैडर में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं कि 4/7 और 12/21 ये दोनों एक ही फ्रैक्शन है, लाइक है, बिल्कुल लाइक है, कारण कि ये रिड्यूस करके 4/7 ही बन जाएगा। उसी प्रकार से ये 9/2 और 18/4 एक जैसे हैं, रिड्यूस करके 9/2 बन जाएगा। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। एंड I have best tried regarding like and unlike fractions examples given in the next video. Till you enjoy with this video, take proper care its every event, and I hope if your observation is going under smoothly, certainly you will benefit it. Thank you and have a nice day.